In my videos previously, I have discussed the sources that you need to consult for preparing for law entrance exams. Now, Lakshmi Kant ki book was one of the sources for constitution that I had suggested. But there is one issue with this book, that it is a UPSC based book and not specifically based for law entrances like DU, BHU, MHCET. So, what is to be done? We need to figure out the topics that are need to be done from this book. If you want to go by this book only, this book is too lengthy, and it is not necessary that all the topics that are given in this book, all the chapters that are given in this book, that need to be done. And apart from that, not just chapters, subtopics and topics also, there are some areas that might not be covered in the book from the point of view of a law examination, and there are some topics that are covered which are not really required for such an exam and which is meant for UPSC exam only. तो इस वीडियो में हम यही जो टॉपिक्स इस बुक से कर रहे हैं, we will discuss about those. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So in this video, we are going to discuss about all the topics that you need to do from this book if you are consulting this book. Now, at this stage, I would say that for some people it might be a little tough to start with this book right now, because if we consider, we keep in mind that probably 3 months are left for the examination. So from that point of view, this book is very lengthy and it will take your whole month if you will go by the book and you will keep learning everything. So there are topics that are to be skipped. For those people who have already read Lakshmikant once and are relying on it, for them I'd like to tell what the topics are that you should really do from this book. Now, historical background, all these things are not to be done. मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ बेसिक्स हैं, सम लीगल स्टैटिक जीके दैट यू कैन डू फ्रॉम हियर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी, कब रेजोल्यूशन आया था, हु वर द मेंबर्स, हु वाज द प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी, चेयरमैन, देन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली आया, कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, ऑल दीज बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर. देन सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, तो टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में क्या टेक्स्ट दिया है, एंड ऑल्सो इंग्रेडिएंट्स क्या है प्रियम्बल में, ये आपको पता होना चाहिए. कीवर्ड्स प्रियम्बल के यू शुड नो, एंड ऑल्सो significance of preamble you can ignore. All these things you will find a lot of subtopics like significance, criticism. ये चीजें आप छोड़ सकते हैं, ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. Preamble is a part of constitution, yes, as per केशव नंदा भारती it is a part. Then बेरुबारी के बारे में बताया है कि बेरुबारी के according constitution preamble was not a part of the constitution. This you need to know. Amendability of preamble, 42nd amendment, this you need to know. देन यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें तो आर्टिकल 1 के अंडर इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज. देन पार्लियामेंट की क्या पावर है इसको रीऑर्गेनाइज करने की, आर्टिकल 2, 3, 4, these you need to know. एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश वाला जो टेरिटरी एक्सचेंज का केस था, दिस यू नीड टू नो द अमेंडमेंट. देन this you can leave. Evolution of states and union territories, you really need not know this. Then citizenship की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11 is what you need to cover. यहाँ पर हम citizenship act 1955 के बारे में, now you need not know all the details of this act, you just need to know कि citizenship किस तरह से acquire होती है इस act के अंदर. Then you need to know the constitutional provisions की, constitution के according पार्लियामेंट की क्या पावर है सिटीजनशिप को लेके, एंड बाकी जो भी बॉडीज हैं उनकी क्या पावर है सिटीजनशिप को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सिटीजनशिप कब ग्रांट होती है, एंड एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया था वो क्या था, दिस यू नीड टू नो. फिर फंडामेंटल राइट्स की बात अगर करें तो फंडामेंटल राइट्स में आपको ये सब चीजें पूरा, यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ रीडिंग की फीचर्स क्या है एग्जैक्टली आपको एक एक पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है. डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 यू नीड टू नो. देन अगर हम फ्रीडम्स की बात करें, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारे आपको करने की जरूरत है. आर्म्ड फोर्सेस बहुत सुपरफिशियल, मार्शल लॉ ऑल्सो सुपरफिशियल. देन राइट टू प्रॉपर्टी की क्या पोजिशन है, दिस यू नीड टू नो. ये बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं.
देन कमिंग ऑन टू डीपीएसपी। डीपीएसपी की अगर बात करें तो ऑल यू नीड टू नो इज कि डीपीएसपीज क्या है। जो भी सारी डीपीएसपीज दी हुई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। Then also, this book really classifies DPSPs into certain categories like Gandhian, sociological, liberal। तो ये इस बुक में डिवाइडेड है। आपको एग्जैक्ट डिवीजन जानने की जरूरत नहीं है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। ऑल दिस यू नीड नॉट नो। देन सैंक्शन बिहाइंड, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। conflict between fundamental rights and DPSPs you can read, yes। एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बेसिक यही है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये स्टेट्स के लिए होते हैं टू फॉलो, एंड एज सच दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, एज सच दे आर नॉट जस्टिसिएबल। देन फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको पता होना चाहिए कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आर्टिकल 51A में कवर्ड है, एंड स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज आई है। लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स इज रियली नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर। तो ये जो थ्योरी है ये तो ऑब्वियसली रेलिवेंट नहीं है कि क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वेरी बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू नो, एंड थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो वो चीजें आपको जानने की जरूरत है फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बुक क्योंकि यूपीएससी बेस्ड है तो ये वाली चीजें इस बुक में एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दी गई हैं। देन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या है, क्रिटिसिज्म अगेन नीड नॉट बी डन। सो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इमर्जेंस कहाँ से हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, ये कॉन्सेप्ट जब केशव नंदा भारती में फर्स्ट टाइम ये प्रिंसिपल ले डाउन हुआ। देन इसके एलिमेंट्स क्या है, क्या एक इंडिकेटिव लिस्ट दी गई थी केशव नंदा भारती केस में, एग्जॉस्टिव लिस्ट आज तक बेसिक स्ट्रक्चर की एज सच प्रिपेयर नहीं करी गई है, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। सो दिस हायरार्की ऑफ द केसेस हियर कि कहाँ से शुरू होता है, सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद केस से लेके एंड तक मेनका गांधी केस तक आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। नाउ फॉर थिंग्स लाइक दीज आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इंटरनेट से, एंड ऑल्सो वी हैव आवर मॉड्यूल्स जहां पर हमने इन चीजों को सिंप्लीफाई करके एक नोट्स क्लियर नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है। देन स्टार्टिंग विथ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन कहाँ से आया है, दिस यू कैन स्टडी। देन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स में एक्चुअली घुसने की जरूरत नहीं है, रीजंस फॉर अडॉप्टिंग में घुसने की जरूरत नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रेलिवेंट। मूविंग फॉरवर्ड, फेडरल सिस्टम, यू शुड नो दैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, वो एक क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का। यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं। ये फीचर्स कौन से हैं, यू कैन स्टडी दीज। This critical evaluation you can leave. Now again and again, this critical evaluation is basically the view of the author on the whole constitution as such, so you need not study or get into the details of that. ऑब्वियसली अगर जब आप आगे पढ़ेंगे, कमेंट्रीज पढ़ेंगे, व्हेन यू डू LLB, तो आपको और अच्छे हाई लेवल की कमेंट्रीज पढ़ने को मिलेंगी। यू कैन स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। देन अभी हम अगर प्रैक्टिकली सोचे तो लॉ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस में लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिन रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, इनके बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि सेंटर स्टेट में किस तरह से रिलेशनशिप्स प्रिवेल करते हैं। देन इंटर स्टेट रिलेशंस में आपको पता होना चाहिए कि कुछ ये जो काउंसिल्स हैं ये बनाए गए हैं to keep these interstate relations alive. You need not get into the details of these things. Then emergency provision, national, state, financial, 3 टाइप की इमरजेंसी हैं, इनके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। क्रिटिसिज्म हम छोड़ देंगे। प्रेसिडेंट, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, ओथ, टर्म्स, वैकेंसी, ये सब
फंक्शंस, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, पार्डनिंग पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की. This all you can study. President is a very important part. That is why all these topics you need to cover. Vice president की बात करें, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टर्म्स एंड वैकेंसी, पावर्स एंड फंक्शंस, ये सब बहुत ही वन लाइनर फॉर्म में आप याद कर सकते हैं. यू नीड नॉट गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स. बेसिक्स आपको ये पता होने चाहिए. देन प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ओथ, टर्म, सैलरी, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है प्राइम मिनिस्टर की. देन ये सब रोल डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको नहीं करने की जरूरत है. रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट के बेसिक्स आप कर सकते हैं. देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उनका क्या रोल होता है, नेचर ऑफ एडवाइस, अपॉइंटमेंट, ओथ, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पोजिशन क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का. देन ये आप छोड़ सकते हैं, इतना ज्यादा इन चीजों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. Then cabinet committees also you can leave. Then moving forward, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, कॉम्पोजिशन क्या है, दोनों हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा. देन इलेक्शंस कैसे होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, ड्यूरेशन, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है पार्लियामेंट के, स्पीकर वगैरह, ये सब आपको पता होनी चाहिए. देन सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, इसका बहुत बेसिक, बिकॉज ये भी यूपीएससी लेवल का है एंड बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है. लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट में बिल्स कैसे पास होते हैं, जॉइंट सीटिंग, बजट. देन ये सब आप छोड़ सकते हैं. पोजीशन ऑफ राज्यसभा क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यू कैन रीड अबाउट, दिस यू कैन लीव. देन पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑल्सो you can leave, parliamentary forums you can leave, parliamentary group you can leave. Supreme Court is important. Composition, appointment, qualifications, all this needs to be done. Then coming on to judicial review में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि judicial review होता क्या है. To keep a check on the power of the judiciary, the fact that judiciary has the power to analyze, scrutinize the decisions of the executive or any authority, ये जुडिशियल रिव्यू में कवर्ड है. ये आपको बस बेसिक्स पता होनी चाहिए. देन यस, 9th शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज सेड दैट 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हैं, मोस्टली लैंड रिफॉर्म्स को लेके ये जो लॉज इसमें आते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, उन पे चेक करने की जरूरत नहीं है. हाउएवर केशवनंदा भारती में ये बोला गया था कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, देन they will be subject to judicial review. Then judicial activism is also one concept where it is seen कि judiciary अपना जो role है वो perform करती रहे and it does not really exceed the ambit जिसके within the judiciary can function. It should not go beyond it and take up the functions of legislature कि judiciary laws बना रही है. तो judicial activism और judicial review, ये जो दो concepts हैं ये आपको पता होने चाहिए, बेसिक में पता होना चाहिए. यू नीड नॉट गेट इनटू ऑल दिस. देन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मीनिंग ऑफ PIL, बस बेसिक PIL आपको पता होना चाहिए कि PIL होता क्या है. देन गवर्नर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, टर्म, all these things you need to know about the governor. Same for the chief minister. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो स्टेट और सेंटर का बहुत सेम है. अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें और या फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर करें, बहुत ही हल्की कुछ जगहों पे डिफरेंस है. यू शुड नो दोज डिफरेंसेस एंड इफ यू कवर वन, द अदर इज ऑटोमेटिकली कवर्ड. Then state legislature, it is also the same as that of the parliament. जब आप पढ़ेंगे, the only difference is about the two houses, legislative assembly, legislative council. Legislative council is not present for all states, however legislative assembly is. एंड यहाँ पर भी किस तरह से मेंबरशिप होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है, सेशंस कैसे होते हैं, ये पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल दीज थिंग्स यू कैन स्टडी. हाई कोर्ट के बारे में आपको सब पता होना चाहिए. देन
ट्राइब्यूनल्स, एडमिन ट्राइब्यूनल्स, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेट होते हैं। कौन से ट्राइब्यूनल्स हैं, दैट यू कैन प्रॉब्ली रीड। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह में इतना डिटेल में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, इनके बारे में आप रीड कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हुए हैं। यू डिड नॉट गेट इनटू ऑल दिस। देन पंचायती राज में भी बस आपको यू कैन प्रॉब्ली स्टडी की 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज आया, म्यूनिसिपैलिटी 74th से आया, कौन से शेड्यूल में ये गिवन है, अंदर का डिटेल एज टू देयर फंक्शनिंग एंड ऑल यू नीड नॉट स्टडी। Then union territories में special provisions for Delhi you can study, and administration of UT through LG होता है। These are the basics that you need to know. Then ये भी आप छोड़ सकते हैं। Then apart from this constitutional, non constitutional bodies काफी सारी दी हुई हैं। सब वो bodies के बारे में आप एक बार पढ़ सकते हैं कि उसका composition क्या है, function क्या है, term क्या है, ये बेसिक है। आई हैव कवर्ड दीज बॉडीज इन माई यूट्यूब वीडियो एज वेल, यू कैन सी देयर। एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब फॉर आवर कोर्स, उसमें ऑलरेडी क्लियर डिविजन गिवन है बॉडीज का कि आपको बॉडीज के बारे में क्या क्या पढ़ना है। और एंटी डिफेक्शन लॉ इज समथिंग दैट यू कैन स्टडी अपार्ट फ्रॉम दैट। बाकी जो भी एंड के टॉपिक्स हैं यू कैन लीव दैट, बिकॉज बहुत सारा पोर्शन जो एंड का है वो सारा छोड़ने का है। सो आई हैव नॉट pasted the index here. This is the 6th edition of the book that we are talking about. So all in all these are the topics that you need to do. Comments में आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर आपको और कोई query या doubt है। And if this video was of any use to you, then do hit the like button and subscribe to this channel for more such videos.